Yes, students, today I am starting the next chapter, Human Eye and the Colorful World. To understand this chapter, first we will discuss about the human eye because human eye plays very important role when the light has to enter inside it and we see the object and its images through our eye. So eye has a significant role to see the object. Here we see the physics behind that, how this eye helps out to make the images of the object. So some biological knowledge we have to take before going through the physics of this chapter, physics of the eye. So here I have made a structure of the eye for you. We see this is the structure of the eye. We start from here. This is the very external part of the eye. After this you have the iris. Then you have the pupil through which the light enters inside the eye. Here I have written down the aqueous humor. This is the space which is filled up by the this space is filled up by the liquid which is known as aqueous humor. Then this is the oval structure. This is it is a crystalline lens. It is a convex lens through which light enters inside the eye. Here this structure is known as this and this. This is the structure which is known as the ciliary muscles. Ciliary muscles control the size of this lens. Behind it, again in this region, we have a different liquid which is known as vitreous humor, and in the back side of here it is a retina where we see the images of the object which are present in front of the eye. Then you see here this part is known as optic nerves through which the light signals goes to the brain where brain identify the objects. Here one more point is there which is known as blind spot. There we cannot see any object. How the iris and the pupil looks from the outside. हम सामने से जब इसको देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है. दिस इज द फ्रंट पोर्शन. जब बाहर से हम किसी की आंख को देखते हैं तो एक अंदर डार्क छोटा सा हमको स्पॉट दिखाई देता है ब्लैक कलर का. दिस स्पॉट इज नोन एज द पीपल एंड अराउंड इट यू आर हैविंग द स्ट्रक्चर्स लाइक दिस. ये हमें इस तरह से यहाँ पर फाइबर टाइप के दिखाई देते हैं. दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज द आइरिस. These two allows the light according to the need of the situation. If sometimes light is very bright, then the size of this pupil decreases. When the dark light is some darkness is there, not enough light is there in the room, and you want to see the object, then size of this pupil increases. Now we see the role of the different parts of the objects, structures we have discussed here. The first thing I told you, the cornea. क्या करता है cornea? It is a transparent part of the eye which allows the light to enter the eye. It is spherical in shape. इसको आप अपर्चर भी कह सकते हो आई का. इसको एंट्रेंस पॉइंट भी कह सकते हो जहां से लाइट ने एंटर करना होता है. ओके. देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आई where the light comes to the iris. It is a dark muscular diaphragm between the cornea and the lens
इट कंट्रोल द साइज ऑफ द पिपल। इसका जो मेन फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन जो है वो इसको पिपल के साइज को कंट्रोल करना, जो भी मैं डिस्कस आपसे कर रहा था। देन द पिपल क्या करती है? इट इज ए स्मॉल डार्क पार्ट इनसाइड द आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स। पिपल रेगुलेट्स, यहाँ पर जो पिपल है वो जो है इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ द लाइट टू एंटर इन द आई और लेंस। कितनी लाइट अंदर जानी है ये पिपल का अब यहाँ पर रोल हो जाता है, ये अपने साइज को कम या ज्यादा यहाँ पर कर लेगा। देन द सिलेरी मसल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स, इट कंट्रोल द साइज ऑफ द आई लेंस और द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। फोकल लेंथ, अभी आपने जो लास्ट चैप्टर स्टडी किया है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देयर यू सी we have the focal role of the focal length. The lens makes the images. In those numericals you see we can use different lenses of the different focal length for our need, but here in case of the eye, the distance between the retina and the lens is fixed. हमारी रेटिना और इसके बीच का जो डिस्टेंस है फिक्स्ड है, जो लेंस है हमारा। अब रेटिना क्या है? रेटिना हमारा यहाँ पे रोल प्ले करता है स्क्रीन का, ठीक है। तो जब ये डिस्टेंस फिक्स हो गया, इसका मतलब वी फिक्स्ड है यहाँ पे, एंड यू इज वेरिंग। सो अभी हम फिर इस पर और डिस्कस करते हैं। अभी पहले इसको देखिए, सिलेरी मसल क्या कह रही है, कैसे बदल रही है। फोकल लेंथ इंक्रीजेस ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स। ये मसल्स रिलैक्स कर जाती हैं और फोकल लेंथ हमारी बढ़ जाती है। एंड डिक्रीजेस ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और फोकल लेंथ उसकी डिक्रीज हो जाती है। अब ये सिलेरी मसल्स के कॉम्बिनेशन के साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं crystalline eye lens. It is a double convex lens. It produces real and inverted image on the retina. तो अभी हमने आपसे बोला कि जो हमारा ये लेंस है, ये लेंस टाइम के साथ में अपनी इसको चेंज कर रहा है वैल्यू को। तो ये चेंज क्यों कर रहा है, आइए देखते हैं। इसका रीजन ये है, ये आई लेंस है हमारे पास में, और इसके पीछे देखिए, बाद में एक और स्टडी कर लेते तब मैं समझाता हूँ। रेटिना, इट वर्क्स एज ए स्क्रीन ऑन विच द इमेजेस वी सी। ओके, यहाँ पर इमेजेस बनती हैं। तो ये हमारा जो रेटिना है, यहाँ पे इमेजेस को बननी है, ये लेंस है और यहाँ पे रेटिना हमारे पास में। ये जो डिस्टेंस है इट इज़ फिक्स्ड, हम अपनी आँख में इस डिस्टेंस को नहीं बदल सकते हैं। और रेटिना जो वर्क कर रहा है, ये कैसे वर्क कर रहा है, ये स्क्रीन की तरह वर्क करता है यहाँ पर। तो इसका मतलब है, और हम जानते हैं कि इमेज हमारी कहाँ बननी है, यहाँ बननी है। ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज कैसी बननी है, रियल और इन्वर्टेड बननी है। तो इट मीन्स आप जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द लेंस इज द वी। तो वी यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड है, वी फिक्स है। यहाँ पर जो हमारे लेंस फार्मूले में वी आता है वो फिक्स है, इसको बदल नहीं सकते अपनी आंख में। बट द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ दिस आई, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बदल रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये बदल रहा है, 10 सेंटीमीटर, 20, 40, 50, 30, 1 मीटर, 10 मीटर। तो यू इज वेरिंग, यू हमारा यहाँ पे वेरी करता है, यू हमारा वेरी करता है। तो अब हमारा जो लेंस फार्मूला है वो क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो v तो मेरा, ये तो मेरा फिक्स हो गया, ये वेरी कर रहा है। तो v हमारा अगर फिक्स हो गया है तो मुझे f भी वेरी कराना पड़ेगा बिकॉज ऑफ फिक्सेशन ऑफ द v। तो इसलिए जब भी u बदलेगा तो ये f बदल जाएगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें
V में कोई चेंजेस नहीं है। अब ये F के चेंजेस कैसे होते हैं, यहाँ पर हमारे पास में ये जो सिलेरी मसल्स हैं, ये सिलेरी मसल्स ही हमारी जो है इसको बदल देती हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि अगर फोकल लेंथ बढ़ानी है तो सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, अगर उसको डिक्रीज करना है तो सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। So this is a very important function, the combination of these two ciliary muscles and the lens which provides the image on the retina. Then तो रेटिना हम जान गए जो कि इमेज यहाँ पर। अच्छा एक चीज और है, some special cells are attached with it which are sensitive to the light. इस रेटिना के साथ में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, क्या करते हैं वो, which are sensitive to the light and turns the light energy into the nerve impulses बनाते हैं for the brain को ये nerve impulses सेंड करती है रेटिना, then brain उसको एनालाइज करता है, then it tells you what is the object in front of you. Then the optic nerves, यहाँ पर हमने शोध किया था लास्ट में, it is formed by the nerve fibers attached with the retina. It carries the nerve impulses to the brain. Then we have the aqueous humor. ये क्या था, behind the cornea, शुरुआत में जहाँ से लाइट ने एंटर किया था, the space is filled up with this liquid. It maintains the intraocular pressure. Vitreous humor क्या है, this is filled between the lens and the retina. It is the clear gel like liquid. ये दोनों लिक्विड एक्चुअली देखा जाए तो जो लेंस है हमारा उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं आंख के अंदर, अपने हमारी आंख के अंदर. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द आई and the various parts of the eye. Okay, so this is over.